In the previous class of the fluid mechanics, we had done types of flow of fluid. Is it? There are three types of flow of fluid: streamline, laminar, turbulent. Streamline, laminar, and turbulent flow. Also, I think we had have we done with Reynolds number? Yes or no? Now, as we know, three type of flow, and know that fluid has three type of flow: streamline, laminar, and turbulent. Streamline and laminar are the same thing. ठीक है? तो Reynolds number. It is a number that determine. It is a number that determines type of flow of fluid. Type of flow of fluid. Suppose it is a pipe of diameter d in which fluid is flowing with v velocity. It is a pipe of diameter d in which fluid is flowing with v velocity and fluid has density rho. Fluid has density rho. So the coefficient of viscosity of the fluid is eta. So Reynolds number will be rho dv by eta. Reynolds number is rho dv by eta. Density of fluid, diameter of pipe, velocity upon में coefficient of viscosity. Density of fluid, diameter of pipe, velocity upon में coefficient of viscosity. If Reynolds number is less than 2000, if after calculation Reynolds number come to be or less than 2000, then flow of fluid is streamline. And if it comes greater than 3000, then flow becomes turbulent. And if it lies between 2000 and 3000, then the flow becomes unpredictable. It changes its state from streamline to turbulent, and so turbulent to streamline. If the value of the Reynolds number is less than 2000, then the fluid flow is streamline. If greater than 3000, it is turbulent. If lies between 2000 to 3000, then it keeps changing its state from streamline, turbulent, and turbulent to streamline. Equation of continuity. Equation of continuity. What is the equation of continuity? देखिए बच्चे, suppose it is a pipe, ठीक है? Here area is A1, velocity is V1. At this point area become A2, velocity become V2, and at this point area is E3, velocity is V3. So what is the common in all?
कि जितना भी पानी इस वन पॉइंट से एंटर करेगा उतना ही टू से क्रॉस करेगा, उतना ही थ्री से क्रॉस करेगा। कि जितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ पर है उतना ही रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड यहाँ पर होगा, उतना ही रेट ऑफ फ्लूइड हर जगह रहेगा। जितना पानी एक सेकंड में यहाँ से एंटर करेगा उतना ही टू पॉइंट को क्रॉस करेगा, उतना ही थर्ड थ्री पॉइंट से बाहर आएगा। इज इट और नॉट? फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड, फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ फ्लूइड, जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही पानी यहाँ से बाहर निकलेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड हर जगह सेम रहेगा। Q स्टैंड फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, Q स्टैंड फॉर रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, यानी कि वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड या वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, वो हर जगह सेम रहेगा। सो व्हाट कैन आई से? दैट Q here is a constant. What can I say? Q here is a constant. Q is what? Volume of fluid flowing per unit time is a constant. वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो? एरिया इंटू हाइट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। हाइट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। A into V is a constant. At each and every point in the streamline flow, AV is constant. That is, A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3. This is known as equation of continuity. Volume of fluid flowing per unit time always remain constant. Volume can be written as area cross sectional area into height. यानी कि कितनी हाइट का फ्लूइड पर सेकंड फ्लो कर रहा है। हाइट पर सेकंड इज डिस्टेंस पर सेकंड इज वेलोसिटी, तो एरिया इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। A1 V1 is equal to A2 V2 is equal to A3 V3। ठीक है, ठीक है। This is the equation of continuity. So equation of continuity is basically based on the law of conservation of mass. Equation of continuity is basically based on law of conservation of mass. How you can say this? एक्चुअली यहाँ पर मैंने ना मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम को, ये मैंने कैसे कहा है? मैंने ये कंडीशन लिखी ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। वो मैंने इसलिए कहा है कि मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम कांस्टेंट रहेगा, है ना। जितना पानी एक सेकंड में एंटर कर रहा है उतना पानी बाहर निकलेगा। मास ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। अब डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम कितना आ जाएगा बच्चे? K बाय रो। ये भी एक कांस्टेंट है, यही तो मैंने यूज किया है
कि वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज अ कांस्टेंट, यस और नो? तो बच्चे रेट ऑफ equation of continuity is basically the law of conservation of mass. Equation of continuity is basically the law of conservation of mass. ठीक है? ठीक है बच्चे? देखिए बच्चे लिखिए, ये फाइंड द velocity of fluid from surface 5. Find the velocity of fluid from surface 5. आपके पास एक पाइपों का नेटवर्क है, इसका एरिया ए, इसका एरिया ए, यहाँ आपका 3a/2, इसका 2a, इसका 3a/2, 2a, इसका a। यहाँ से वाटर 2v से एंटर कर रहा है, यहाँ से v से एंटर कर रहा है, यहाँ से 2v से एंटर कर रहा है, यहाँ से v से एंटर कर रहा है, यहाँ से 3v से बाहर जा रहा है, 2v से बाहर जा रहा है, यहाँ से कितनी वेलोसिटी से बाहर जाएगा? फाइंड v1, 1 2 3 4 5 6। फिफ्थ सरफेस पर आपको वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड निकालनी है। फाइंड v1। फाइंड v1। बच्चे आर्यन, मुकुल, पार्थ, सार्थक, सूर्यांश, you have not write your roll number in the front. Why so? Write your roll number. अक्षय सागर ने पता नहीं क्या लिखा हुआ है ये। यस, नीचे की तरफ, आउटसाइड। यस बच्चे, यस, हाँ सेकंड में अंदर की तरफ जा रहे हैं। बच्चे भाई, जितना पानी एंटर कर रहा है उतना ही पानी बाहर निकलेगा, कंसेप्ट इज सेम। तो इन दिस द फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम द सरफेस, इन दिस द फ्लूइड इज एंटरिंग फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड बस फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो जितना फ्लूइड फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ से एंटर कर रहा है, जितना फ्लूइड फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ से एंटर कर रहा है, उतना ही थर्ड, फिफ्थ और सिक्स से बाहर आना चाहिए।
थर्ड फिफ्थ और सिक्स से बाहर आना चाहिए। तो फर्स्ट से कितना एंटर कर रहा है, ए इंटू टू वी। रेट ऑफ फ्लूइड का फ्लो ऑफ फ्लूइड का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू वेलोसिटी। तो ए इंटू टू वी, सेकेंड सरफेस से ए इंटू वी, फोर्थ सरफेस से 3a/2 इंटू वी इज इक्वल टू 2a इंटू में 2v प्लस a इंटू v1 प्लस 3a/2 इंटू 2v। तो ये जाएगा 3av प्लस 3av/2 प्लस इज इक्वल टू 4av प्लस 3av प्लस av1। तो ये आ जाएगा 3 टू 6, 9av/2, 9av/2 इज इक्वल टू 7av। हाँ तो नेगेटिव का मतलब अंदर जा रहा होगा ना, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड उल्टी है। ये ए कट जाएगा, ढाई 5/2, हाँ माइनस 5v/2 इज इक्वल टू v1। माइनस साइन इज शोइंग कि इससे पानी अंदर जा रहा होगा, नेगेटिव साइन इज शोइंग दैट फ्लूइड इज मूविंग इनटू द फिफ्थ सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डीप वाटर रन स्लो। यस बच्चे बोलिए, जतिन बोलो बच्चे। ओके ओके, व्हाई डीप वाटर रन स्लो। ठीक है बच्चे, व्हाई डीप वाटर रन स्लो। व्हाई डीप वाटर रन स्लो। सोचिए बच्चे, इसका आप वही क्वेश्चन है कि समुद्रों के जो अंदर का पानी होता है वो शांत होता है, ऊपर लहरें उठती है, क्यों। देखिए जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूँ एरिया बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूँ एरिया बढ़ता जा रहा है। ए इंटू वी कॉन्स्टेंट है, अगर ए इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे जैसे आप गहराइयों में मूव करेंगे नीचे की तरफ, एरिया इंक्रीज करता जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करती जाएगी। दैट्स व्हाई डीप वाटर रन स्लो। ठीक है, जैसे जैसे क्या बच्चे, सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा मैं, अगर फ्लूइड ऐसे फ्लो कर रहा है इन दो चट्टानों के बीच में सपोज, तो ये वाला एरिया तो कांस्टेंट है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा ना, मैं इतना एरिया इन कांटेक्ट की बात कर रहा हूँ, ये वाला। अब देखिए इस वाली लेयर के लिए इतना एरिया है, अगर मैं और नीचे मूव करूंगा तो लेयर इतनी मोटी हो जाएगी। यहाँ पर इतना एरिया कांटेक्ट में था, यहाँ पर इतना एरिया कांटेक्ट में है।
ऊपर वाला एरिया तो कौन फिक्स है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। आई एम जिन दो चट्टानों के बीच का एरिया मैं उसको ले रहा हूं, और नीचे जाऊंगा तो एरिया, इतना बड़ा एरिया कवर होना लगेगा। यस और नो? तो ए इंटू वी कॉन्सेंट, जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं एरिया बढ़ता। हाँ हाँ हाँ। तो एरिया वाई तो डीप वाटर रन स्लो। आगे लिखिए बच्चे। टाइप्स ऑफ एनर्जी possessed by the fluid. Types of energy possessed by the fluid. बच्चे फ्लूइड के पास तीन तरह की एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको पता है। एंड द थर्ड वन इज प्रेशर एनर्जी, ये आपको नहीं पता। प्रेशर एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट प्रेशर exerted by the fluid. Pressure energy is the work done against pressure exerted by fluid. प्रेशर एनर्जी क्या होता है बच्चे? It is a work done against, it is work done against pressure exerted by fluid. अब देखिए बच्चे, सपोज ये आपका कंटेनर है जिसके अंदर कोई फ्लूइड है, यहां पर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये इसका यहां पर एक पिस्टन लगा है। नाउ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। यू नो दैट फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, फ्लूइड हर जगह प्रेशर लगा रहा होगा। आई एम कंसिडरिंग दिस प्रेशर, फ्लूइड इज आल्सो एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन दिस पिस्टन, ठीक है। पर मैं इसके यहां से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से ये पिस्टन इस तरफ मूव कर रहा है। इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया इन टाइम टी, तो ये जो वॉल्यूम है ये कितना हो गया? एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू में हाइट। तो ये इस फोर्स का जो वर्क डन है इसी को हम क्या कहेंगे बच्चे? प्रेशर एनर्जी। तो बच्चे वर्क डन होगा कितना? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी इस तरफ है, एफ डॉट एस होता है। फोर्स भी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुई है। फोर्स भी इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुई है। तो ये हो जाएगा एफ एक्स कॉस जीरो। फोर्स होता है प्रेशर, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट कैन यू राइट टू फोर्स? प्रेशर इंटू एरिया एक्स, एरिया इंटू हाइट क्या है? वॉल्यूम। तो वर्क डन इज pressure into volume. This work done is called pressure energy. Pressure energy. This work done is called pressure energy. PV. Formula of pressure energy is PV. ठीक है? Formula of pressure energy is PV. Pressure into volume. ओके बच्चे, देखिए बच्चे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, प्रेशर एनर्जी पी वी। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा?
पर यूनिट मास, मास से डिवाइड कर दीजिए, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम, वी स्क्वायर बाय 2। ये स्मॉल वी वेलोसिटी, कैपिटल वी वॉल्यूम है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, पर यूनिट मास हो जाएगा एम जी एच अपॉन एम, दैट इज इक्वल टू जी एच। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास क्या हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास कितना हो जाएगा बच्चे, पीवी बाय एम। मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, तो पी बाय रो, मास अपॉन वॉल्यूम तो डेंसिटी होता है, पी बाय रो। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन में वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, एम जी एच बाय रो वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो जी एच, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी रो जी एच। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पीवी बाय वी, पी। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन एम जी, वी स्क्वायर बाय जी। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट कितना हो जाएगा बच्चे, एम जी एच बाय एम जी एच। एंड प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट पीवी बाय एम जी, तो आ जाएगा पी बाय रो जी, पी बाय मास अपॉन वॉल्यूम को क्या पुट कर दिया बच्चे, रो। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या पुट कर दिया बच्चे, रो। यस और नो, इतना क्लियर है बच्चे, में तो कुछ किया ही नहीं, बस जिसका पर यूनिट था उसको डिवाइड करता चला गया, जिसका भी पर यूनिट था उसे डिवाइड करता चला गया। ठीक है, पर यूनिट मास था तो मास से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम था वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, पर यूनिट वेट था तो उसे मैंने वेट से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो बच्चे देखिए, हाँ बच्चे बोलिए, हाँ पी अपॉन रोजी होगा ना, लास्ट इज पी अपॉन रोजी, देखिएगा क्या, हाँ पी अपॉन रोजी। ठीक है, तो बच्चे देखिए, इसको बोलते हैं काइनेटिक हेड, पर यूनिट वेट वालों को क्या बोलते हैं हम, हेड। काइनेटिक हेड बोल दो या वेलोसिटी हेड बोल दो, या वेलोसिटी हेड। पर यूनिट वेट वालों को यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड। ठीक है, पर यूनिट वेट वालों को क्या बोलते हैं, हेड। इसको यहां पर क्या बोल सकते हैं, पोटेंशियल हेड, और इसको यहां पर क्या बोल सकते हैं, प्रेशर हेड। इसको हम क्या बोलते थे, प्रेशर हेड। तो इसी से हमारी आती है बच्चे नई थ्योरम, जिसको हम कहते हैं बर्नौली थ्योरम, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, बर्नौली थ्योरम। बर्नौली ने कहा था आप इन तीनों का सम ले लो, या इन तीनों का सम ले लो, या इन तीनों का सम ले लो, या इन तीनों का सम ले लो। ठीक है, वो हमेशा फ्लूइड में फ्लो में कांस्टेंट रहेगा। बर्नौली ने क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी का सम कांस्टेंट रहेगा, या काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास का सम कांस्टेंट रहेगा, या पर यूनिट वॉल्यूम वालों का सम कांस्टेंट रहेगा, या प्रेशर एट, वेलोसिटी एट एंड पोटेंशियल एट, इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा बच्चे, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड एंड वेलोसिटी हेड। लेकिन आपको कंडीशन मेंशन करनी पड़ेगी, कब,
इसके लिए कंडीशन होती है कि फ्लो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती थी? इन इन it states that for streamlined flow of incompressible liquid, streamlined flow of incompressible liquid, it states that for streamlined flow of incompressible liquid, sum of कौन कौन हेड में लिख दो, वेलोसिटी हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर हेड ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सम ऑफ वेलोसिटी हेड, प्रेशर हेड एंड potential head is always constant. Is always constant मतलब P by rho g plus V square by 2g plus H is a constant। या फिर पर हम न्यूमेरिकल्स में ये यूज करते हैं। तो P प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज कांस्टेंट है। हम न्यूमेरिकल में ये वाला यूज करते हैं। हम जितनी भी डेरिवेशन वगैरह सब कुछ भी जो भी करेंगे वो सब इसी फॉर्मूले से करेंगे कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी अ कांस्टेंट। P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच विल बी अ कांस्टेंट। दिस इज व्हाट इज बर्नौली थ्योरम। इसकी बर्नौली थ्योरम की आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, दुनिया भर की एप्लीकेशंस है आपके सराउंडिंग में बर्नौली थ्योरम की। That we will discuss in the next class. Today we will do a quiz। बहुत दिनों से क्विज नहीं किया।